Welcome back, viewers. You're watching The Savera and I'm Shefali. A serious case of land subsidence have been reported in the Tangar area of Ramban district, where nearly 4 kilometers of land has begun sinking, sparking fear and uncertainty among the local population. The sudden ground movement, believed to have been triggered by the recent spell of heavy rainfall, has already damaged infrastructure and left families anxious about the safety of their homes. Eyewitnesses said that around 24 residential houses have been developed cracks, some of which have been declared unsafe for the authorities. Families living in the affected structure are now forced to remain on high alert, fearing further collapse, adding to the concern. The government high school Tangar building also developed severe cracks, leading officials to declare it unsafe for use. Deputy Commissioner Ramban, Mohammad Alyas Khan, immediately rushed to the affected area along with disaster management teams and senior officials, including additional SP Mujib-ur-Rahman, ACR Shobat Hayat Mutto, ADFC and CA Nimatullah Sheikh, Tehsildars and engineers from the PWD and PMGSY departments. The delegation conducted an on-ground assessment of the scale of the damage and reviewed urgent safety measures required to protect human lives. During the visit, the Deputy Commissionerate inspected alternative sites identified for setting up a launchpad center where families whose homes have become uninhabitable could be shifted. He assured residents that saving lives remains the administration's foremost priority and appealed to them to stay vigilant and strictly follow the advisories being issued by the district administration. Joint teams of civil and police officials have been deployed to keep a close watch on the situation and to facilitate any evacuation, should it be necessary. Interacting directly with the affected families, the Deputy Commissionerate listened to their concerns, offered immediate assurances and passed on the spot directions to address genuine grievances. He also directed officials to provide relief assistance without delay and to maintain readiness for any emergency response. Local residents, however, remain deeply worried about the sudden land sinking, which they fear could expand and cause further destruction. Many have urged the administration to put in place a comprehensive rehabilitation and compensation plan, emphasizing that temporary safety measures alone may not be sufficient in the long run. Authorities reiterated that the situation is being monitored round the clock and all necessary steps are being taken to ensure the safety and well-being of the residents. The district administration is expected to announce additional measures once a detailed technical assessment of the land subsidence is completed. Listen to their MLA what he has to say after reviewing and assessing all these sites. सूरत हाल तो जो बड़ा पैनिक का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि जैसे रात से हमें ये खबर आई थी कि कुछ इलाकों में जो है सुबह में वी आवर्स में एक फोन कॉल आना शुरू हुए थे कि जमीन धंस रही है जनाब। तो हमें लगा कि कोई एक नॉर्मल सा सिंकिंग होगा, तो उस वजह से हमने जब वहां पर लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा जनाब कुछ तो है, लेकिन सुबह होते होते और दोपहर तक कम से कम 1.5 फुट का जो है वो लैंड जो है सब्सिडेंस होना शुरू हो गया और काफी सारे मकान, मुझे लगता है 20-25 मकानों में जो है काफी गहरी दरारें भी आ गई हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसके बाद जो है फौरी तौर पर हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई और पूरा जिला इंतजामिया, हम, मैडम डीडीसी तमाम जो है मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है और यहाँ जो लोकल रेजिडेंट है इनको भी हमने हौसला अफजाई की है कि यार अभी आप घबराने की कोई बात नहीं, सरकार इंतजामिया आपके साथ है, जो भी नेसेसरी इंतजाम हम कर सकते हैं। पहले तो इनका है कि रिलोकेशन करना, रिहेबिलिटेशन करना कि कहीं सेफर प्लेसेस पे, क्योंकि किसी वक्त भी कोई ऐसा हो सकता है कि कहीं ये पन्नौद की तरह वाकया ना हो जाए या रियासी जमसरान की तरह ना हो जाए कि एकदम से बिल्कुल मकान रह जाए और कहीं किसी जान माल का खतरा ना हो। तो उस चीज का जो है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इनको सेफर प्लेसेस पर शिफ्ट करना। देयर आफ्टर हम ये देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, वो उनका असेसमेंट जो है कंसर्न अथॉरिटीज, चाहे आपका तहसीलदार है, आपका बीडीओ है, उनको हमने हिदायत दी हुई है कि जो भी मौके का जो मुआवजा बनता है मकानों का एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो इनका बना के असेसमेंट करके तो जो भी इनको दिया जाएगा उसमें वो मदद भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हमें काशियस हमें सभी हैं, थोड़ा सा हमने इन लोगों को भी हिदायत दी है कि आप भी थोड़ा सा चौकन्ने रहिए और वहां पर रहिए जहां थोड़ा सा सेफर साइड है। इन मकानों में जहां पर दरारें आई हैं वहां पर रहने की जहमत न करें। जियोलॉजिकल टीमें तो पहले भी आई हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ उस लोकल टीम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने काफी सारी रिपोर्टें दी हैं, लेकिन यहाँ कोई कम से कम IIT जो है माहिरीन है उनकी टीम लाई। पहले भी जब पनौद का वाकया होता तो आपने कहा उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि ये
जो एक नया फॉल्ट लाइन डेवलप हुआ है बिटवीन दिस आपका कंगा से लेके तो परनोर तक। लेकिन एक सेकंड स्टडी आई थी आईआईटी बॉम्बे की, उन्होंने कहा कि इसको डिस्कार्ड किया, उन्होंने कहा ये कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, ये पानी इसके अंदर है, उस कारण से हुआ है। लेकिन अब फिर से जब ये शुरू हुआ है तो मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, उमर साहब से भी हम बात करेंगे कि इसमें जो है मजीद कोई फिर से कोई आईआईटीएंस की कोई एक टीम भेजी जाए ताकि इसकी गहरी हो और सिस्मिक का भी पता किया जाए, क्योंकि कल रात को जो है एक अर्थक्वेक का झटका भी हुआ है। अभी किस वजह से सिंक हुआ है, पानी की इसमें जो है वो ज्यादा हुआ इकट्ठा उस वजह से सिंक हुआ है, या हालिया बारिशें वो भी एक वजह है। काफी सारी इसमें मल्टीपल वजह हो सकती हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जियोलॉजिकल है, जोन 5 में हमारा आता है, सिस्मिक एक्टिविटी यहाँ पर बड़ी ज्यादा है, हाई प्रोन एरिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के माहिरीन और जो जियोलॉजिस्ट के जो है उनकी भी मदद ली जाएगी ताकि इस इलाके को पूरा बचाया जाए। क्योंकि अगर आज वक्त रहते ही हमने काम नहीं किया तो कल कोई कहीं भी बड़ा हादसा हो सकता है सर। मतलब रामबन का कोई भी ब्लॉक मुझे लगता है, चाहे राजगढ़ ब्लॉक हो, चाहे गांधरी ब्लॉक हो, रामबन ब्लॉक खुद हो, आपका उखराल ब्लॉक हो, जितने भी हमारे पास ब्लॉक हैं, बटोज ब्लॉक हो, तमाम के हर एक ब्लॉक में जो है बारिशों ने, सैलाब ने हर एक जगह कहीं ना कहीं अपने जो है तबाही के निशान छोड़े हैं। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमारी मदद करे, केंद्र सरकार भी हमारी मदद करे, और हम सब इस मिल के जो है इस आपदा से कैसे निकलना, कैसे अपनी गरीब जो अवाम है इनको इनके दुख में जो है हम शामिल होके कहीं जो भी थोड़ा थोड़ा किसी तरीके से बनता है तो इनकी मदद की जाएगी। That's all for now on this update. Stay tuned to The Savera, download the app and follow us on various social media platforms.